Hello everyone, this is Dheeraj Kaushal. In this video, I am going to teach you calculation of cost of consumable goods. After going through this topic, you will be able to develop the understanding of the concept of cost of consumable goods and skill of doing its accounting treatment in income and expenditure account and balance sheet of a not-for-profit organization. So let us start the discussion of the topic consumable goods. First of all, the meaning of consumable goods. Those goods which are consumed during a year and have the opening and closing balances are called the consumable goods. The examples are foodstuffs, printing and stationery, medicines, sports material, etc. Let's discuss the calculation of the cost of consumable goods. For consumable goods, the opening and closing stock is given in the question and also the payment made for such items is given in the receipts and payment account. The amount to be shown in income and expenditure account in respect of such items will be calculated as follows, beginning with the amount of purchase of consumable goods, then opening stock will be added to it, closing stock will be subtracted out of it, and you will get the balance which will be shown in the income and expenditure account. The opening stock of such goods is also shown on the asset side of the opening balance sheet and the closing stock is shown on the asset side of the closing balance sheet. Let's discuss the practical problems associated with this particular topic. Question number 1 is, extract of a receipt and payment account for the year ended on March 31st, 2015 is given below. The payment for stationery is rupees 23,000. So payment for stationery is given to us. Additional information is, you can see the opening and the closing balance of stock of stationery and creditors for stationery is given to us. So always remember, the opening stock of any consumable item will be added to the payments made and the closing balance will be subtracted. On the other hand, you can see there is also one more detail related to creditors for stationery. Creditors for stationery's opening balance will be subtracted because this shows the stationery purchased on credit during the previous year. So it is not related to the current year. So this amount will be subtracted. Then the closing balance of creditors for stationery will be added because this shows the amount of stationery purchased on credit during the current year. Let's see the solution, how to solve these kind of questions. So we'll start with, first of all, the payment made for the purchase of stationery. It's given in the receipt and payment account. So we'll copy this amount from there. This is 23,000. We'll subtract creditors in the beginning. The amount is 9,000. This will be written in bracket. After this, you'll get the balance rupees 14,000. Then you will add creditors at the end and the balance is 2,500. So after adding 2,500, your net balance is 16,500. So you will add, and this amount of 16,500 is actually showing the stationery purchased. You can call it as the purchased stationery or the stationery purchased. Then you will add opening stock
of stationery, which is 4,000. So total comes out to be 20,500. Then you will subtract the closing stock of stationery, and closing stock is 3,000. It will be written in bracket. So your final amount is 17,500. So this is the stationery consumed. This is your final answer, stationery consumed for the year 2014 and 15. So this amount will be written on the debit side of income and expenditure account. Let's discuss the question number 2. On the basis of the information given below, calculate the amount of stationery to be debited to the income and expenditure account of Vani Sports Club for the year ended 31st March 2017. सेम इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस आपको दिए हैं. तो जो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, ये हम प्लस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को हम करेंगे माइनस. अब देखते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को कंसिडर करना है या नहीं करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना है कि क्या मुझे परचेस्ड अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया है या फिर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें पेमेंट मेड दिया था और इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, स्टेशनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो स्टेशनरी परचेज का मतलब है कि वो कैश और क्रेडिट दोनों परचेजेस को इंक्लूड किए हुए है. तो यहाँ पे परचेज्ड वर्ड दिया है, इसीलिए हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ पे जो आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वही. तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को हमने क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है. अब देखिए हम इसे कैसे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. हम सबसे पहले लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये हमारी हेडिंग बन गई. हम लिखेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी. तो परचेज ऑफ स्टेशनरी हमें क्वेश्चन में दे रखा है. परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना था, परचेज ऑफ स्टेशनरी आपको दे रखा था 47,000. इसमें हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000, ये हमने इसमें ऐड किया और टोटल आ गया 55,000 का. इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 6,000, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए. तो आपका जो मेन आंसर है 49,000 का, ये आपने मेन कॉलम पर शो किया. तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप कैसे दिखा सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के भी आप इसको दिखा सकते हैं. और एक दूसरा तरीका है, आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको शो करेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना के. सबसे पहले तो आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है स्टेशनरी का, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, वो है 8,000. और साथ ही मैं लिख लेती हूँ क्लोजिंग बैलेंस. तो जो क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं, वो है 6,000. तो इसको मैंने लिखा. इसके बाद यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट. कि ये जो पैसे हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट से आएंगे. तो वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि परचेज हमने कितना किया, जो परचेजेस की इन्फॉर्मेशन है परचेज्ड. अब हमें नहीं पता कि सारा परचेज क्रेडिट पे है कि सारा परचेज कैश पे है, या दोनों हैं उसमें, कैश और क्रेडिट. तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसकी थी, परचेज की थी. तो हम उसे मान के चल रहे हैं कि वो क्रेडिट पर है. तो हमारे पास अमाउंट था 47,000 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आपकी बन जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है और ये हमें क्या बता रही है कि ये क्या चीज़ है, ये है हमारी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द
ईयर। तो निकाल लेते हैं कैसे आएगा ये अमाउंट, दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। टोटल आया 55,000, ये हमने दोनों साइड पे लिख दिया। इसमें से हमने क्रेडिट का जो अमाउंट है 6,000 सब्ट्रैक्ट किया और हमारा बैलेंसिंग फिगर 49,000 का ये आ गया स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो आप इस तरीके से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट को बनाकर भी आप निकाल सकते हैं कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना है और कितना शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and the balance sheet as at 31st March 2016 and 31st March 2017। तो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिटेल्स हमारे पास हैं किस किस चीज़ के। आपको यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक हमें पता है हम क्या करते हैं प्लस, क्लोजिंग क्या करते हैं माइनस। ऐसे ही क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, तो क्रेडिटर्स के केस में जो ओपनिंग हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हम माइनस करते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेट करते हैं, और जो एंड वाले क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें हम करते हैं प्लस। थर्ड आइटम, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एडवांस टू सप्लायर का मतलब क्या होता है कि आप एडवांस दे रहे हैं आने वाले ईयर के लिए। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है एडवांस टू सप्लायर्स का, इसका मतलब कि लास्ट ईयर आपने जो एडवांस दिया था अपने सप्लायर को वो आपके इस करंट ईयर के लिए था, तो ये रिलेटेड टू करंट ईयर है, इसलिए हम इस पैसे को क्या करेंगे प्लस। और इसका ठीक ऑपोजिट, जो एडवांस टू सप्लायर आपको एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होगा वो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दिया है, तो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आप इसको कर देंगे माइनस। सो पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,20,000। अब मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है, परचेस्ड वर्ड लिखा है या पेमेंट वर्ड लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। तो कितना दिया है यहाँ पे हमें, 1,20,000 का। और एक और इन्फॉर्मेशन है, देयर वर नो कैश परचेजेस मेड। तो कैश परचेजेस हमारे यहाँ पे नहीं हुए थे। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को हम बनाएंगे और यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, हम लिखेंगे पेमेंट मेड। तो हमारी पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी है, दैट इज़ 1,20,000। इसमें से अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं सारी चीज़ें। हमें क्या लेस करना है, हमें लेस करना है क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग को हम करेंगे यहाँ पर लेस, और वो कितना है 7,800 है, इसको हम लेस करेंगे। और साथ में लिख लेते हैं और क्या चीज़ हमें लेस करनी है, हमें लेस करना है एडवांस टू सप्लायर्स। एडवांस टू सप्लायर्स कौन से वाला, एडवांस टू सप्लायर्स इन द एंड और एट द एंड। एट द एंड वाला हमें क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है क्योंकि ये रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से। तो इसका भी अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट हमें यहाँ पे दे रखा है दैट इज 25,000। तो ये भी हमने करना है लेस। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं कि कितना आया, और ये टोटल करने के बाद हमारे पास इसका अमाउंट आ चुका है लेस करने के बाद ये सारा 87,200। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ऐड करने के लिए हमारे पास हैं क्रेडिटर्स एट द एंड, वो कितना है 9200। इसके अलावा हमें क्या ऐड करना है, एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू सप्लायर्स एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। तो वो हमारे पास कितना दे रखा है, हमें
15,000 ये हमने कर दिया इसमें प्लस, तो ये सारा कुछ प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आया 1,11,400। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड दैट इज स्टॉक इन द बिगिनिंग। स्टॉक इन द बिगिनिंग हमारा कितना है, स्टॉक इन द बिगिनिंग जो है दैट इज 2200, ये हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये आया 1,13,600 का, और हम लेस कर देंगे यहाँ से स्टॉक एट द एंड। स्टॉक एट द एंड को हमने लेस किया विच इज़ 5,800, तो इसे हम लेस कर देते हैं और देखते हैं हमारा मेन जो अमाउंट है वो कितना है, दैट इज़ 1,07,800। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, दिस इज स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड। तो ये हमारा स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट निकल कर आया। ऑल्टरनेट तरीका है, हम इसे और कैसे दिखा सकते हैं, हम बना सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट और दूसरा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट। तो सबसे पहले बनाते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट। तो क्योंकि ये क्रेडिटर्स है इसीलिए इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से, तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो है हमारा 7,800 का। इसी तरह से हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है, दिस इज 9,200। इसके बाद हमें क्या कंसिडर करना है, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसके लिए हमें यहाँ पर आपने कोई उनको एडवांस वगैरह एट द बिगिनिंग दिया है तो वो आप लेकर चलेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज द एडवांस इन द बिगिनिंग। तो एडवांस इन द बिगिनिंग हमारा कितना है 15,000 है। इसके अलावा आपने जो उन्हें पेमेंट की है उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट हमारा शो करता है कि हमने पेमेंट उन्हें ड्यूरिंग द ईयर कितनी की है, तो वो पेमेंट हमारी थी 1,20,000 की। इस इन्फॉर्मेशन को भी हमने लिख लिया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और ये हमें क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल। तो ये परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल आपको शो करेगा, ये बैलेंसिंग फिगर है। हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,44,200, इसे हम दोनों तरफ लिख देंगे और क्रेडिट साइड के 7,800 हम जो है इसमें से हम माइनस करेंगे। और एक और चीज़, हाँ हमें एक और चीज़ यहाँ पर लेनी है, वो क्या है, दैट इज़ बैलेंस कैरिड डाउन। क्योंकि यहाँ पे अगर एडवांस का बिगिनिंग था तो एडवांस का जो एट द एंड वाला बैलेंस है वो भी लिखना है। तो एडवांस एट द एंड ये भी हम लिख लेते हैं। तो 25,000 का ये एडवांस भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स का था वो हमने लिखा, एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग वो भी हमने लिखा, हमने पेमेंट कितनी दी हमने वो भी लिखा। अब निकालने जा रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमने डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट किया और बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया 1,11,400। अब हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट। तो ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट की शुरुआत होगी डेबिट साइड से। हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ 2,200। सिमिलरली हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज़ 5,800। देन आपको यहाँ पे अब जो आपका आपने परचेजेस वगैरह किए थे वो भी हम यहाँ पे डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर
sports material account. This is the purchases transferred from creditors account. तो वो कितना था, अभी हमने वो कैलकुलेट किया है, दैट वॉज 1,11,400. तो हमारा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल कर आएगा कि कितना पैसा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर. और ये क्या शो करता है, ये शो करता है स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर को शो करेगा. तो ये हमने इसको निकालना है बैलेंसिंग फिगर. कैसे, टोटल कर लेते हैं. डेबिट साइड का टोटल है 1,13,600. तो वही आपका क्रेडिट साइड पे भी लिखा जाएगा. उसमें से क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है 5,800 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट निकल कर आया 1,07,800. सो दिस इज़ अवर स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड. तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए कि कैसे आप इसको कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं. अब हम इसको दिखाएंगे, वो हमारे वर्किंग्स थे, अब हम इसको दिखाएंगे हमारे मेन सोल्यूशन में. तो कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. वहाँ पे आप डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम्ड. और ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. और इसका जो अमाउंट है हमारा दैट इज़ 1,07,800. तो इसको हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा. अब देखते हैं बैलेंस शीट में हम कैसे लिखेंगे. जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड पे आप लिखोगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल. तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल जो हैं वो आपके 7,800 के हैं. और आप एसेट साइड पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल. तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए 2,200 हैं. ऐसे ही हम लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर्स. और ये एडवांस टू सप्लायर्स है हमारा 15,000. अब चलते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको कैसे दिखाएंगे. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सिमिलरली हम लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल एंड दैट इज 9,200. और आपकी एसेट साइड पे आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल जो कि आप क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं. तो वो आपका आया 5,800. और ऐसे ही एडवांस टू सप्लायर्स. एडवांस टू सप्लायर्स कितना है हमारा 25,000. तो ओपनिंग की चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग से रिलेटेड चीज़ें क्लोजिंग बैलेंस शीट में. अब जल्दी से हम रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें आज डिस्कस की हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर एंड हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स. स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटीरियल, मेडिसिन, फूड स्टफ्स एट्सेट्रा. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ अपीयर होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ अपीयर होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. थर्ड पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स आर नॉट प्रोवाइडेड. अगर ना दी हो देन प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट. तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट. इफ अमाउंट पेड फॉर गुड्स इज गिवन इन द क्वेश्चन देन क्रेडिटर्स फॉर गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, बट if goods purchased during the year are मैंने बोला if amount paid for goods is given in the question then creditors for goods will be considered. But if goods purchased during the year are given then creditors for goods will not be
कंसिडर। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अमाउंट पेड दिया है फॉर गुड्स का तो आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि क्रेडिटर्स को हमें कंसिडर करना है, लेकिन अगर आपको परचेज्ड वर्ड दिया है तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसको रिवाइज कर लें। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और जो बैलेंस आएगा वो हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।